factories in India. Clear? Yes or not? Clear? Next point लिखेंगे. Industrial revolution in Europe. Industrial revolution in Europe increased the production. Industrial revolution in the Europe increased the production at mass level, for which they require source of raw material, for such large and massive production. As well as, तो ये तो चाहिए उन्हें सोर्स, तो रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे? कॉटन. यस टेल मी. इंडिया. तो रॉ मटेरियल इनके पास चाहिए, क्योंकि यहां पे सबसे पहला इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वो किसका हुआ? कॉटन का. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आई सेड दैट, टेल मी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. यस ना? और उसके लिए रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए था बहुत ज्यादा. एनादर उनको क्या चाहिए था? यस टेल मी. मार्केट फॉर देयर लार्ज प्रोड्यूस. यस ना? as well as they need market for large production of produce, large production of produced goods. Yes sir? They need large amount of what? High, so much of production of the goods are which are taking place. उनके लिए क्या चाहिए? मार्केट. Yes or not? और इसी मार्केट के लिए उन्होंने क्या किया? They started what? क्या करने लगे? Yes, tell me. Through the political empowerment, they made the countries of Asia and Africa to be colony, and they became imperialist. They became, yes or not? लिखेंगे, for this purpose through their political empowerment approach, they started creating colonies in Asia and African countries, through their imperialistic approach, through their imperialism. I said imperialistic. Yes. और imperialistic का मतलब मैंने बताया था. What is the meaning of imperialism? I said yes sir. तो imperialism का मतलब क्या होता है? What is the meaning of imperialism? I said that for the benefit of mother country exploiting other country. Understood? तो इस कारण से उन्होंने, अब यहां पर समझ में आ गया आपको क्यों हुआ इंडिया वो आए. द रीजन बिहाइंड दिस इज फॉर कमिंग इन इंडिया.
अब इंडिया में कौन कौन आया है स्टेल में? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ये तो समझ में आ गया कि दे कम फॉर विच वन? आई सेड दैट गोल्ड एंड ग्लोरी। गोल्ड मीन्स इकोनॉमी, glory means power, yes or not? And along with this also they made entry of Christianity, means God. So लिख लेंगे, this imperialist country has three main views. This imperialist country has three main views. And they are gold, glory, and God. Gold, glory, and what is it? God. Is it okay? और सबसे पहले कौन आया इंडिया में स्टेल में? Thereafter, then thereafter French. So Portuguese, Dutch, English, and then I said that who? French. चलिए, तो वी आर गोइंग विद, आई सेड दैट हमें क्या करना है? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। I said in 1498, who came? Yes, tell me who came? Vasco da Gama. And where he reached? At Calicut. और यहाँ के किंग थे ज़ैमोरिन। who? Jamorin, who welcomed him. and यहाँ से जब वो लौटे तो 60 टाइम, वहाँ कुछ नहीं देखो, यहाँ सारा कुछ देखो और नोट करते चलो, एंड मैं मिटाते चलूँगा, सो प्लीज कीप ऑन नोटिंग इट डाउन। 60 times benefit of all the cost। जो भी वो कॉस्ट जिससे वो ट्रेवल करके आए और जो भी यहाँ पर इन्होंने किया, उस सभी कॉस्ट से उन्होंने उनको बेनिफिट कितना मिला? 60 टाइम्स। तो बताओ क्या होगा? इतने टाइम बेनिफिट मिलना, इसका मतलब इट इज व्हाट? So 60 times benefit. Is it okay? And thereafter there is a coming of Cabral. Who came? अब बोला कि who came? याद रहेगा? Pedro Cabral. Who came? Pedro Alvarez कैब्रल। लेकिन आपको केवल कैब्रल याद रखें। हु कैम? हु कैम? कैब्रल। और कैब्रल के बाद दोबारा वास्को डी गामा आया। हु? इन 1502।
तो पहले वो कहां आया था, जस्ट टेल मी। इन केरला, कैलिकट, और उसके बाद ही स्टैब्लिश हिज एम्पायर, मतलब थोड़ा सा और भी इसने अपने रीजन लिए, और कन्नानूर एंड अनदर इट इज, आई सेड दैट कोच्चि। Which are the three reasons that he has taken? Kannanur आ गया, C for Kannanur, Calicut already, and Kochi. These are the three regions come under the power of Portuguese, where they started doing trade in. अब कौन दो पर्सन अभी तक आपने देखा, यस टेल मी। यस, कैब्रो। Then there is an establishment of Estado da India. Estado da इंडिया, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को पोर्तुगीज की उनकी अपनी कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, उसका क्या नाम रखा गया, क्या था उनका, Estado da India. Which Estado da India. Is it clear? अब इनका पर्पस ये नहीं था कि मैं ट्रेड करूंगा, अब यहां पर उन्होंने यहां के स्पाइस का ट्रेड यूरोपियन के साथ करने लगे। पहले तो वो ट्रेड खुद कंट्री के लिए आ रहे थे, अब क्या करने लगे वो, अब यहां की चीजों को क्या ट्रेड करने लग गए, यूरोप में। इज इट ओके? पहले तो वो खुद अपने आते और अपने कंट्री ले जाके बेचने वाला काम करते। अब दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड ऑफ ईस्ट विद द यूरोप। Estado da India, trade of, started what? Trade of East with Europe, और स्पेशली वो तो कोई दिक्कत नहीं स्पाइस में। Understood? Is it clear? And there are, फिर इसके बाद गवर्नर्स आने लगे। जब कंपनी बैठ गई तो कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, तो ट्रेडिंग कंपनी के बाद देयर इज अ कमिंग ऑफ सम गवर्नर्स। मेरे साथ बोलेंगे अल्मीडा। विच इज द बेस्ट मैंगो इन इंडिया, बेस्ट क्वालिटी मैंगो इन इंडिया? अल्फांसो। चलिए बोलिए, अल्मीडा, अल्फांसो, मार्टिन अल्फांसो। चलो छोड़ दो, मैंने क्या बोला, अल्मीडा, अल्फांसो, मार्टिन अल्फांसो मत बोलो, उसको बाद में बोलना। हमने क्या बोला, अल्मीडा, अल्फांसो, निन्नो द कुन्हा एंड मार्टिन अल्फांसो। क्या क्या नाम बोला मैंने, अल्मीडा, अल्फांसो, which one I said that, Alfonso, yes, sorry, Almeida, Alfonso, Ninno da Cunha, मार्टिन अल्फोंसो। ज़्यादा पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, यस, फ्रांसिस्को अल्मीडा, ये सब नहीं करना है, केवल थोड़ा सा याद रखना। यदि पूछ दिया जाए प्री में क्वेश्चन तो थोड़ा सा नाम तो याद रहेगा। अल्मीडा, अल्फोंसो, निन्नो द कुन्हा एंड मार्टिन अल्फोंसो।
ऑलमाइटी गॉड ने अल्फांसो आम खा रहा है, क्या है? अरे ऑलमाइटी समझते हैं? ऑलमाइटी गॉड को क्या बोलते हैं? ऑलमाइटी। वो क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? और कितना खाया? 9। क्या खाया? 9। और खाया तो उसको आम को खून करेगा तभी तो खाएगा। 9 आम का खून करके खाया, ऐसा ना, निन्नो दा कुन्ना। फिर उसके बाद बोला दोबारा मैं मार कर खाऊंगा अल्फोंसो को। मार्टिन, लास्ट में मार्टिन अल्फोंसो, कैन यू रिमेंबर? When the Almeida camp, remember that it is able to, I said that यहाँ पे गुजरात, ये नाम याद हो गए? फर्स्ट टेल मी फर्स्ट, which are the name I said that? Almeida, Alfonso, then I said Ninno da Cunha, मार्टिन अल्फोंसो। यहां पर आपको पता हो कि दिस इज, आई सेड दैट ये गुजरात है और ये बीजाब में है। आपको पता हो कि 1350 टू 1650 कौन था यहां पर? बामनी किंगडम। एंड देन 1350 टू 1650 इट इज व्हाट? विजयनगर एम्पायर। ऐसा ना, सबको याद होगा। तो यहां पर जो था इसमें अहमद, बामनी किंगडम में दिस इज अहमदनगर एंड दिस इज बीजापुर, ऐसा ना। तो यहां पर उन्होंने गुजरात, अल्मीडा ने गुजरात और बीजापुर को डिफीट किया। ये आपका दीव रीजन है, इसको बोलते हैं दमन, एंड इट इज व्हाट? तो कहां पे डिफीट किया? टेल मी, दोनों ये पावर को, गुजरात एंड बीजापुर को किसने डिफीट किया? टेल मी। पोर्तुगीज, विच वन? अल्मीडा। जब ऑलमाइटी होगा वही डिफीट करेगा। हाँ, स्टादो द इंडिया। Is it okay? किलर दमन एंड दीव पे, इसका मतलब यहां पे पावर क्रिएट करने लग गए। यस नॉट? यस नॉट, याद रहेगा। देयर आफ्टर गोवा, गोवा किससे लिया? बीजापुर से। गोवा हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम वेयर? बीजापुर से। और इसी समय इन्होंने फिर बहुत अच्छा इनके साथ रिलेशन बना लिया, बीजापुर किंगडम। यू नो दैट आदिल शाही, और ही हैज आल्सो एबल टू मेक गुड रिलेशन विद द विजयनगर एम्पायर। और दिस अल्फोंसो आम ने बहुत अच्छा नेवल पावर क्रिएट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पोर्ट्स अवेलेबल था। नेवल पावर, what he has created, tell me? Naval power, is it clear? और निन्नो दा कुन्ना ने क्या किया? कोचीन से लेकर, पहले वो कोचीन इंपॉर्टेंट प्लेस था, उसको ट्रांसफर करके उन्होंने अपना कैपिटल कहां डाल दिया? गोवा। कोचीन टू गोवा, अंडरस्टूड? कोचीन टू गोवा, गॉट इट? क्लियर? कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट गवर्नर ऐसे? अल्मीडा, अल्फोंसो, निन्नो द कुन्ना, मार्टिन अल्फोंसो। यस सर, आई सेड। और अल्मीडा ने क्या किया? स्टेल में गुजरात एंड बीजापुर को हरा के दमन दीव। गोवा को कैप्चर किया किसने? अल्फोंसो ने। और निन्नो द कुन्ना ने कोच्चि से गोवा को अपना कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। इज इट क्लियर? यस और नॉट? इज इट क्लियर टू यू? सो we have been able to see, like I said, that what they have done. I said and Martin Alfonso के लिए इतना important नहीं है, that will be asked for you. Is it clear? Shall I remove? याद हो गया? इसका मतलब है धीरे